Good morning, students. Again, I have come up with some conceptual question which will help you to learn the main points of the theories related to the bonding in coordinate compounds like valence bond theory, then limitations of valence bond theory, and then crystal field theory. Just a mention of ligand field theory, and I will also tell you about Jahn-Taylor distortion. Okay. So, with the help of Jahn-Taylor distortion, you will come to know about that there are a few molecules whose structure, when you try to find out using hybridization, then you get something, but actually its structure assumes to be something else. Okay, so that will be a later stage of discussion. To reach up to that stage of discussion, we will start with this question. The question says that we have to compare the structure of the following pair of coordinate compounds. So this is hexaamine cobalt 3 ion and this is hexafluorido cobalt 3 or hexafluorido cobaltate ion. Here it is tetrachloronickel or tetrachlorido nickel late ion. It's not nickelate ion, and this is tetracyano nickelate ion. So what is common in these? In these two, central metal ion is common, and in this also central metal ion is common. So from the question itself you can understand that if the central metal ion is also same, then too the structure may be different. Another thing what is same in this is, here also there are 6 ligands, here also there are 6 ligands. Here there are 4 ligands, here there are 4 ligands. Here the charge is -2, here also the charge is -2. Here charge is +3 and here it is -3, but because it is negative ligand. So in spite of so many similarities, their structures are different. This can be explained by using two types of theories. Okay, one theory is valence bond theory, in which we show the hybridization of central metal ion. Another theory is the crystal field theory, which says that there is no such donation of electron from the ligand into the d orbital of central metal atom, but the force of attraction between the central metal ion and the ligand is purely electrostatic in nature. That is crystal field theory. Okay, this is the main difference between ligand valence bond theory and crystal field theory. Now, without coming into the aspects of these theories, using our pre-knowledge of hybridization, just by our previous knowledge of hybridization, we will be able to find out the answer of this question. Let us see how. And after that, you will be able to find out you will be able to write down the main points of the theories on your own, without mugging it or without by hearting it or without learning it by heart. So, first of all, we take A. In hexaamine cobalt 3 ion, we know that cobalt has atomic number 27. So if it gives out 3 electrons, then it will become cobalt 3 plus ion, and it will have the valence shell electronic configuration as, for this we can write 3d7 4s2. -3 electron means first of all electron will come out from here and then electron will come out from here. So we will write 3d6 4s0 4p0 and 4d0. Box diagram for CO3 plus ion. So we can write valence shell electronic configuration of cobalt 3 plus ion will be 1, 2, 3, 4 and 5. For 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, S, P and D.
So this is the condition of the valence shell of CO3 plus ion. Same up to this will be the same thing even for hexafluorocobaltate ion. Okay, in this case also it is like that also. CO3 plus ion, its valence shell electronic configuration, or we can write valence shell electronic configuration of CO3 plus ion will be same here also. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons are filled up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4s2. Now, there are 6 ammonia molecules, so this shows that 6 vacant orbitals are required. And here also 6 cyanide group is there, so 6 are there. Yeah, 6 fluorine are there. Alright, so for COFe 6 minus 3, 6 fluorine atoms or ions, fluoride ions need 6 vacant orbitals. ठीक है, यहां तक कॉमन क्या है दोनों में, हमें कंपेयर करना है हेक्साइमिन कोबाल्ट 3 आयन और हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट आयन के स्ट्रक्चर को. तो सेंट्रल मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोनों में कॉमन है. तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि कंपेयर करने के लिए कहा गया है. डिफरेंस ये है कि अमोनिया जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड. और हैलाइड्स जो होते हैं जनरली, हैलाइड्स सभी हैलाइड्स, सिर्फ फ्लोराइड ही नहीं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, आर वीक लिगेंड्स. ठीक है. अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बहुत ज्यादा है. तो एमोनिया मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर पुश करके पेयर्ड अप कर सकता है. ठीक है. लेकिन फ्लोराइड ऐसा नहीं कर सकता. फ्लोराइड कैनॉट डू दैट. फ्लोराइड कैनॉट डू दैट. So we are discussing about these 3 molecules, isn't it? Fe, hexafluoro or hexafluorido cobaltate ion and hexaimine cobalt 3 plus ion. What is common in this? Cobalt atom is there. Cobalt atom is there, cobalt ion is there, cobalt ion is there. Valence electronic configuration is same. Valence electronic configuration is same. Number of vacant electrons, number of vacant orbitals required is equal to 6, and number of vacant orbitals required also equal to 6. The difference is here that ammonia is a strong ligand, whereas halides are weak ligands. So ammonia will be able to push the electrons more inside the d orbitals. ठीक है. तो ये d orbitals के अंदर जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देगा और ये पेयर्ड अप हो जाएगा. 1 2 3 4 5
6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 2 ऑर्बिटल खाली। ठीक है, इसको एकदम ऐसा ही बनाते हैं जैसे यहाँ पे है, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5 6. Now there are 2 vacant d orbitals, one s orbital and 3 p orbitals. तो इसको हम लिख सकते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कम ऑन मेरे साथ एक बार और। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? इंटरमिक्सिंग, कुछ भी जिसको मिक्स कर दो वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? जिसको मिक्स कर दो वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या मिक्स कर रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। क्या मिक्स कर रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। किसे किसे मिक्स कर रहे हैं? D2 को मिक्स कर रहे हैं, एक 1s को मिक्स कर रहे हैं, और 3p को मिक्स कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो रहा है। कम ऑन मेरे साथ फिर से बोलना एक बार। D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो ये जो D है, ये D कौन सा है? ये 3D है। 3D 4s and 4p। तो इसमें जो D ऑर्बिटल है वो इनर D ऑर्बिटल यूज्ड अप हो रहा है। इनर D ऑर्बिटल, इसलिए किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स हुआ? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ। इस पर हम आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं एक बार और। इस केस में फ्लोराइड इज ए वीक लिगेंड। मैंने क्या कहा? फ्लोराइड इज ए वीक लिगेंड। फ्लोराइड जो है एक वीक लिगेंड है। ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स को पुश नहीं कर सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जहां के वहां वैसे ही रहेंगे, जहां के वहां वैसे ही रहेंगे, और this will remain where it was, 1 2 3 4 5 and 6, और आउटर sp3d2, आउटर sp3 and d2, इसमें जो ये d हो रहा है ये 4d ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा है, और इसमें जो d ऑर्बिटल है ये 3d ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा है। So this is D2sp3 hybrid orbital and this is sp3d2 hybrid orbital। क्या डिफरेंस है? इसमें इनर d ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा है, और इसमें आउटर 4d ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहा है। Hence it is D2sp3 hybrid orbital। Hence it is D2sp3 hybrid orbital। It is D2sp3 and this is sp3d2। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें डिफरेंस ये होगा कि स्ट्रक्चर दोनों का ही ऑक्टाहेड्रल होगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ ऑफ देम विल बी ऑक्टाहेड्रल, बोथ ऑफ देम विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हेक्साएमीन कोबाल्ट CO ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा, एंड दिस विल आल्सो बी ऑक्टाहेड्रल। CO F FE sorry F F F and F, this will also be octahedral, both will be octahedral। तो क्या डिफरेंस आया फिर? दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक D2sp3 है, एक sp3d2 है, दोनों ऑक्टाहेड्रल है। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस यहां है कि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं, यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप हियर।
है ना, यहाँ पे अमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स, 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 ठीक है। सो ऑल आर पेयर्ड, NH3, 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 NH3. Here all electrons are paired up. सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप है. सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे तो इसको क्या कहेंगे हम? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. दिस विल बी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक. But here unpaired electrons are there. Here unpaired electrons are there. After filling up of the electrons, जब यहाँ पे फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 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 6 बार फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 बार फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. उसके बाद भी यहाँ पे 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे. ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या करेगा? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा. सो हियर इन दिस मॉलिक्यूल, इन दिस मॉलिक्यूल नेट मैग्नेटिक मोमेंट will not be equal to 0, will not be equal to 0. But here in this molecule, net magnetic moment will be equal to 0. This was diamagnetic. This will be paramagnetic. P-A-R-A. Magnetic. This will be a paramagnetic molecule. This will be a paramagnetic molecule. ओके. नाउ जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें उसको हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. इसे हम ऑल्सो कहते हैं लो स्पिन. क्योंकि इसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो नलिफाई हो जा रहा है, यहाँ पेयर्ड अप हो रहा है ना. ड्यू टू दिस पेयरिंग व्हाट इज हैपनिंग? द स्पिन क्वांटम नंबर S is becoming equal to 0. Spin quantum number is becoming equal to 0. But here the spin quantum number is not equal to 0, but it is S is equal to, means sum of all the spin quantum numbers plus half plus half plus half plus half is equal to half plus half plus half plus half, half spin plus half spin plus half spin plus half spin is equal to 2. ठीक है. अगर number of unpaired electrons, if number of unpaired electrons is equal to, if number of unpaired electrons n is equal to 0, then root over n into n plus 2 is equal to mu, that is Bohr magneton, will also be equal to 0. In this case, since n is equal to how many? 4. N is equal to 4. That means mu is equal to n into n plus 2 will be equal to root over 4 into 4 plus 2 will be equal to root over 24. ठीक है. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द रूट ऑफ 24? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 2 12s r, 2 6 r, 2 3s r. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे? 2 इंटू 4.2 इंटू
1.414 multiplied by 1.732, ठीक है. दैट मीन्स इट विल हैव एन एप्रिसिएबल वैल्यू. इसको अगर हम 1.5 मान लें तो ये 3 हो जाएगा, इसको 2 मान लें तो 3 2 6, यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5 और 6 के बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए. दैट मीन्स इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है मतलब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. इसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है यानी कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं तो ये लो स्पिन हो गया. इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप नहीं है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ. इसे हम क्या कहेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है. तो इसे एक बार और फिर से समराइज कर लेते हैं, ठीक है. सो विल जस्ट समराइज इट वंस अगेन, पूरा क्लीन करके इसको समराइज करते हैं. अच्छे से समझा दिया गया है. अब जो इनके मेन पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे जॉट डाउन कर दे रहा हूं. CO NH3 whole 6 plus 3 CO Fe6 sorry F6 minus 3. First point is it forms low spin complex. It forms high spin complex. It has D2sp3 hybrid orbitals of CO3 plus overlap with electron pairs of the ligand. Here sp3d2, first point. Second point, here sp3d2 hybrid orbital sp3d2 hybrid orbital of CO plus 3 ion overlaps with electron pairs of the ligands. Next is this is diamagnetic. In nature, this forms inner orbital complex. This is paramagnetic in nature. And it forms outer
ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स, similarities, it also forms octahedral structure, it also forms octahedral structure. तो इसको कंपेयर करने के लिए हमने कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया, सिर्फ एक ही टूल यूज किया, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और कुछ भी नहीं यूज किया। और सिंपली अपने माइंड में हमने ये रखा कि अमोनिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और हैलाइड्स जो होते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं, हैलाइड्स जो होते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं, इतना ही तो रखा था। ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड वाली जो बात है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात है, और जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट हमने यूज किया था, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ड्रॉबैक्स के बारे में, और फिर उनके ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया, और फिर दोबारा सेम टू सेम एक्सरसाइज हम करेंगे इन दो मॉलिक्यूल्स के लिए, इन दो मॉलिक्यूल्स के लिए। तो फिर क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड यूज ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्या होगा, ये जहन में आ जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हम फिर क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम वही सब कुछ लिखने वाले हैं जो हम इस डिफरेंसेस के पॉइंट में लिखे थे, ठीक है। मेन पॉइंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। First, the valence shell of central metal atom or ion takes part in coordinate bond formation. कोई नई बात है इसमें, इसमें कोई भी नई बात है जो सीखने लायक बात है, बताओ कुछ भी नया है इसमें? जो भी अभी अब तक हमने किया है बस उसी को तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, कि जो वैलेंस सेल है सेंट्रल मेटल एटम का, वो टेक पार्ट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिंपल। सेकेंड, valence orbitals undergo hybridization hybridization का मतलब, what is the meaning of hybridization? Intermixing of atomic orbital of comparable energy and redistribution of electrons. Second, valence orbitals undergo hybridization for what? To
create vacant space for accepting the lone pairs from electrons from ligands. Third, the ligands orient themselves around central metal atom or ion in such a way that they form a definite structure depending upon the structure of hybrid orbitals of central metal atom or ion. The meaning of this is that if the hybridization is sp3, then it will be tetrahedral in structure. Okay. Its meaning is that hybridization will lead to tetrahedral structure. D2sp3 will lead to octahedral structure. sp3d2 for outer orbital complex will form octahedral complex. dsp2 will form square planar complex. So this was all about the main points of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अभी तक हमने इन दो मॉलिक्यूल्स के लिए जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, इन पॉइंट्स में सही तो किया. हमने क्या किया था, सेंट्रल मेटल एटम को और सेंट्रल मेटल आयन के वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले लिखा था. उसके बाद फिर उनको हाइब्रिडाइज कराया था. फिर लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को उसके वैलेंस ऑर्बिटल में एंटर करवाया था. और फिर हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हमने बताया था क्या स्ट्रक्चर होगा. और एक आ रहा था D2sp3 और एक आ रहा था sp3d2. ठीक है, और दोनों ही क्या थे, ऑक्टाहेड्रल थे. ठीक है. सो यहाँ तक कहानी था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का.
लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं? ये ड्रॉबैक्स ये है कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये है सभी किसके ऊपर बेस्ड हैं? ये सभी एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स को भी हम यहां पे लिख सकते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको बीबीटी भी बुलाते हैं कभी कभी। फर्स्ट ड्रॉबैक इज इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एजम्पशंस। ये बहुत सारे एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड, alone valence bond theory cannot explain difference in the structure, and structure hybridization and magnetic properties. Structure hybridization and magnetic properties. सिर्फ बीबीटी से हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होगा कि भी नहीं होगा। ये सब कुछ हम सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं पता कर सकते हैं। तो आप सोचोगे कि फिर मैंने कैसे इसको यूज कर लिया? मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैं कम्बिनेशन ऑफ दीज टू थ्योरीज यूज करूंगा। कौन सा कम्बिनेशन? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो मैंने पॉइंट्स कहा था ना कि अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये जो मैंने कहा था कि अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये अमोनिया का जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट इज देयर इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, बट टू गेट द आंसर और टू एक्सप्लेन वी हैव टू यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी। ठीक है, बहुत सारे थ्योरीज को कंबाइन करके हम उसके एक्सप्लेनेशन को निकालते हैं। और चूंकि थ्योरी है इसलिए कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है, ऐसा नहीं है। जो साइंटिफिक फैक्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थ्योरीज बनाते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई मीन टू से इज that alone valence bond theory cannot explain difference in the structure, hybridization and in the magnetic properties. Next is valence bond theory does not give any idea about the color of the complex. Color of the complex cannot be explained by valence bond theory. और क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं? थर्मल एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी cannot explain thermal and kinetic stability of any complex. ये जो दो वर्ड है थर्मल स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड थर्मली स्टेबल होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थर्मली स्टेबल होगा, तो जैसे ही वो बनेगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज करेगा, और हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज करके वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेगा, क्योंकि उसका इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा।
जितनी एनर्जी कम होगा उतना स्टेबल होगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में से ज़्यादा हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से कम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलते हैं, ठीक है, हीट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन निकलते हैं। तो कितना हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगा, व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस कुड नॉट बी कैलकुलेटेड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है, कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ठीक है। उससे हमें ये पता चलता है कि जब कोई आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के बाद उसमें कितनी स्टेबिलिटी आती है, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। So in crystal field theory, one concept is again included and nested, which is called as crystal field stabilization energy। कि जब भी कोई मॉलिक्यूल क्रिस्टल बनता है तो उसमें से एक स्टेबिलाईजेशन एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। वो एनर्जी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन पर उसका कैलकुलेशन करना पॉसिबल है, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रेसाइज थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्योरली एजम्पशन बेस्ड है, उसमें कोई भी क्वांटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते उससे, ठीक है। दिस वॉज अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रिएक्शन करते हैं और मान लो कि दो सेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, एक सेट ए एक सेट बी, एक में हमें ए बनाना है, दूसरे में हमें बी बनाना है, ठीक है। और दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स में सिमिलर हैं, लेकिन एक जो है बहुत जल्दी बन जाता है और दूसरा जो है वो थोड़ा लेट से बनता है। एग्जाम्पल, अगर हम दो आइसोमर्स की बात करें, ठीक है, कोई एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर की बात करें, ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर में सिस आइसोमर की बात करें और एक ट्रांस आइसोमर की बात करें, तो जब हम मान लेते हैं कि डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम बना रहे हैं, डायमीन प्लैटिनम बना रहे हैं या डायमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम बना रहे हैं, मान लो। तो जब हम बनाएंगे तो जो सॉल्ट बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, उसमें क्या सिस ज़्यादा होगा या ट्रांस ज़्यादा होगा, ठीक है। सिस पहले बनेगा या ट्रांस पहले बनेगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये एजम्पशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके लिए थर्मल स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी कि कौन सा मॉलिक्यूल पहले बनेगा और जल्दी बन जाएगा ताकि उसका पॉपुलेशन यील्ड में ज़्यादा हो। पॉपुलेशन यील्ड में ज़्यादा हो मतलब जब हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसका आइसोमर भी बनेगा साथ साथ, तो कौन सा आइसोमर जल्दी बनेगा और कौन सा आइसोमर स्टेबल होगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, जो ग्रीन में लिखे गए हैं। आई होप दैट इट इज़ क्लियर ऑन द बोर्ड, इट इज़ सीन क्लियरली ऑन द बोर्ड, ठीक है। अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिखता हो कभी तो आप मोबाइल को अगर आप इस प्रकार से पकड़ेंगे, अगर आप मोबाइल को इस प्रकार से पकड़ के आप वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत स्मॉल दिखेगा, ठीक है, छोटा दिखेगा। आपको कैसा देखना चाहिए, आपको ऐसे देखना चाहिए। मोबाइल में जब भी वीडियो देखें तो आप 9:16 के रेशियो में देखें, और जब आप छोटा दिखे कुछ भी तो आप अपने फिंगर से इसको ट्वीच आउट कर सकते हैं, ऐसे ट्वीच आउट करके बड़ा करके देखें, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा और शायद आपको दिखने में भी समझने में भी दिक्कत हो, इसलिए आप इसको ऐसे देखें और फिर इसको फिंगर से आप एक्सपैंड करके बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस प्रकार से इन सभी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करता है। तो हम ड्रॉबैक्स को यहाँ रहने देते हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यहाँ लिखते हैं। सो मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वी विल राइट।
ये अचानक हमने अभी क्रिस्टल वर्ड को क्यों यूज किया, फील्ड वर्ड को क्यों यूज किया, ठीक है, ये इसलिए यूज किया क्योंकि ये सभी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स हैं, एक डेफिनेट पैटर्न स्ट्रक्चर है उसका, या फिर टेट्राहेड्रल है, या फिर ऑक्टाहेड्रल है, या फिर स्क्वायर प्लेनर है, यानी कि उसका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो उसको क्रिस्टल कहेंगे। फील्ड क्यों कह रहे हैं, फील्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है तो उसमें एक चार्ज है, कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, कैसा चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, जो कि मूव नहीं कर रहा है, कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज है, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको टेस्ट करने के लिए हम कोई पॉइंट चार्ज और कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसके पास लाएं, और अगर रिपल्सन महसूस हो यानी कि लाइक चार्ज के पास लाए हैं, अगर अट्रैक्शन महसूस हो तो अनलाइक चार्ज के पास ला रहे हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स कैसे होते हैं, लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, कैटायोनिक लिगेंड नहीं होते, कैटायोनिक लिगेंड नहीं होते क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव होता है, सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव होता है, तो सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव होगा तो उसके पास कौन आ सकता है, या फिर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन आ सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल आ सकता है। अगर कोई मेटल है, मेटल में कोई चार्ज है, तो इसके पास कौन भटकेगा, इसके पास कौन आएगा, हु कैन कम क्लोज टू इट, आइदर ए मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, आइदर ए मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रॉन रिच or any anion or any anion or any anion, ठीक है। So ligands are always negative or neutral in nature, either they should be neutral but electron rich or they should be negative charge carrying species, और सेंट्रल मेटल आयन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज गिविंग होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को लेकर ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो द फर्स्ट थ्योरी डज अवे विद द assumption that ligands donate its electron pair into the hybrid orbital of the central metal ion। पहला पॉइंट्स को वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, होता क्या है कि द बॉन्ड between the ligands and central metal atom or ion is purely electrostatic in nature, तो इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि कभी कभी पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, और ये देखा भी गया है, पाया भी गया है, स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हम पाई बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस assumption में इसको मानना जरूरी है। Second, they are saying that when ligands approach near to the d orbital of central metal atom
Then the electrons in the dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square orbitals experience repulsive force and splits into two levels. And or it can be written in the second point. Third point, where can I write? Third point, due to repulsive interaction between electrons in d orbital and electron pairs in ligand dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square splits into two degenerate levels. Degenerate levels means of equal energy levels. This can be shown by this diagram. This is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. Now with the ligands, they come from all around, then it splits into two levels. One is triply degenerate level. This is called as T2G. And another one into doubly degenerate level. It is called as EG. And this line which is actually the center of mass, which passes through the center of mass of the central metal ion. This line passes through the center of mass of the central metal ion. Is called as Bari center. It is called as Bari center. This T2G is nothing but dxy, dyz and dzx, and this is dx square minus y square and dz square. Now what happens
repulsive forces, when repulsive forces are there, so the system tries to decrease its repulsive force. As a result, the d orbital splits into two levels. All right, this is called as octahedral splitting. Octahedral splitting, and we write it as delta 0. Octahedral means delta O, octahedral splitting, and is equal to 10 dq. dq is the unit to measure the energy difference. Okay, dq is the unit to measure the energy difference. The difference between the Eg set of d orbitals and T2g set of d orbitals is called as dq. अब ये T2g और Eg का नाम कहाँ से आया? ये T2g और Eg जो है एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सिमेट्री थ्योरी. ठीक है, सिमेट्री थ्योरी पढ़ते हैं हम, और सिमेट्री थ्योरी में ये कुछ टर्म्स होते हैं. ठीक है, तो जो हमें अभी पढ़ना नहीं है, अभी हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि जो dxy dyz dzx है उसे T2g कहते हैं, और जो Eg सेट है उसे हम वो dxy स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर जो है उसे हम Eg कहते हैं. इतना ही हम जानेंगे. अब किसी इलेक्ट्रॉन का T2g पे आने से क्या होता है? स्टेबिलाईजेशन होता है. और किसी इलेक्ट्रॉन का अगर हायर ऑर्बिटल में चले जाता है, डबल डिजेनरेट Eg में चले जाता है, तो थोड़ा एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाता है. इस प्रकार से हम इसका CFSE निकाल सकते हैं. CFSE मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी. वी कैन कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी बाय फाइंडिंग आउट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द टू लेवल्स. अगर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, ये तो क्या ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग था, दिस वाज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. अगर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा तो ठीक इसका उल्टा होगा. दिस लाइन इज द बारी सेंटर, passes through the center of mass of the centimeter line. This is Eg and this is T2g. Now remember that in case of tetrahedral splitting, we don't use the term G over here. बहुत सारे बुक में आज भी और अभी तक भी मैंने देखा है कि T2G और EG वो यूज कर देते हैं. ठीक है, लेकिन टू बी वेरी प्रेसाइज, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के केस में हम G टर्म को नहीं यूज करते हैं. ठीक है, G इज ओनली यूज्ड फॉर द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. तो D ऑर्बिटल जो है वो दो लेवल्स में टूट जाते हैं. एक होता है T2G और एक EG ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में. और इस केस में भी हम इसे लिखते हैं डेल्टा T टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग. और टोटल डिफरेंस जो है इसका ये 10 dq ही होता है. टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए? 5 ऑर्बिटल्स. तो इसे हम लिखते हैं 2/5 डेल्टा 0, और इसे हम लिखते हैं 3/5 डेल्टा 0. तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं. डेल्टा 0 के बदले हम 10 dq पुट करके देखें. 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 10 dq प्लस 2/5 इंटू 10 dq. तो क्या होगा यहाँ पे? दिस विल बी 2 एंड दिस विल ऑल्सो बी 2. तो ये हो जाएगा 6 + 4 इक्वल टू 10 dq. प्रूव हो गया. यानी कि
यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हम भरते जाएंगे उसको हम माइनस, क्योंकि ये जीरो सेंटर है, बाहरी सेंटर है, तो नीचे वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, उसको हम -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसका जितना भी एनर्जी आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो CFAC निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन का? CFAC फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ओनली इन दिस केस, तो कैसे निकालेंगे CFAC? CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? -2/5, क्योंकि ये बाहरी सेंटर से नीचे है, ठीक है, बाहरी सेंटर से नीचे है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 1, ओके, एंड 1 डेल्टा O is nothing but equal to 10 dq, so it will be equal to -4 dq. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिटल में बढ़ते जाएंगे उतना स्टेबिलाईजेशन होगा, उतना एनर्जी निकलेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले में बढ़ते जाएंगे उतना एनर्जी इसका बढ़ेगा, ठीक है. सो द प्रीफरेंस विल बी दैट इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू, और इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी में भरना चाहेगा खुद को, ठीक है. और अगर प्रमोशन एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन को कोई एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाए तो ही ये हायर ऑर्बिटल में जाएगा, तो ही ये हायर ऑर्बिटल में जाएगा. लेकिन जब भी जाएगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके जाएगा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ को, लाइट को एब्जॉर्ब करके जाएगा, और जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो रेडियंस है उसका वो कलर शो करेगा. अगर वो ब्लू को एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू छोड़ के बाकी जितने भी स्पेक्ट्रम है उन स्पेक्ट्रम को मिला के जो कलर होगा वो उसको शो करेगा, ठीक है. तो जो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इस एनर्जी को क्रॉस करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होगा वो हमें उस कॉम्प्लेक्स के कलर में दिखेगा, उस कॉम्प्लेक्स के कलर में दिखेगा. जैसे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उसको जब हम वाटर में डाल देते हैं, एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है ना, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है. लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल्स निकल आते हैं उसमें से, ड्रॉपलेट्स, और वो वाइट हो जाता है, ठीक है. तो ऐसा इसलिए है कि जब उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर ऑर्बिटल में जा पाते हैं, इसलिए ब्लू कलर दिखता है. लेकिन जब हाइड्रेशन एनर्जी रहेगा नहीं, वाटर रहेगा नहीं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं और कॉपर सल्फेट वाइट दिखने लगता है, ठीक है. तो कई सारे ऐसे कलर बेस्ड एग्जाम्पल्स जो हैं, कलर बेस्ड एक्सप्लेनेशंस जो हैं, वो हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी से दे सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पॉसिबल नहीं था, ठीक है. नेक्स्ट इज, अब तो ये ड्रॉबैक समझ में आ चुका होगा, कंपैरिजन भी समझ में आ चुका होगा, सो आई कैन इरेज दिस पार्ट. इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे ये कोई मेटल है, इसमें लिगेंड्स हैं ऐसे, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. अगर लिगेंड्स ऑक्टाहेड्रली अप्रोच करे तो octahedral splitting will take place. Then octahedral splitting will take place. But if the electrons will approach tetrahedrally, then tetrahedral splitting will take place. So depending upon the direction of the approach of the electrons, this splitting takes place. All right. Now concept of CFAC. Fourth, this was first point. Fourth point, due to
splitting of 5 degenerate orbitals of d orbital due to splitting of 5 degenerate d orbitals into T2g and EG stabilization of complex compound takes place color is also explained very well. Due to transition of electrons from T2g to EG or T2 to E, color of the complex compounds develop. So these are the broad points of crystal field theory. Now, based on crystal field theory, again we will come to the previous question which we were discussing. Based on that, these two molecules were remaining, isn't it? These two molecules were remaining. Now, how much splitting of the d orbital will take place depends upon the ligand field. All right, ligand field. So there is one concept of strength of ligands. The strength of ligands of a few ligands are given in the order like this. First of all, some halides I, I minus, then bromide, then thiocyanide, then sulfide, then fluoride, then hydroxide, then oxalate, then water, then isothiocyanide, then EDTA, ethylene diamine tetraacetate, then ammonia, and then ethane diamine, then cyanide, and then carbonyl compound.
The strength of the ligands are given in this order. This order is also called as a spectrochemical series. They are also called as spectrochemical series. इनको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसलिए कहते हैं. स्पेक्ट्रा मतलब होता है बैंड ऑफ लाइट, ठीक है, कलर. जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा, ठीक है. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा, और जितना ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा. वेवलेंथ भी लाइट का, एनर्जी लाइट का उतना ज्यादा होगा, लाइट का एनर्जी उतना ज्यादा होगा, ठीक है. फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा, ठीक है. सो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जैसे अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था हमने देखा, और फ्लोराइड वाज ए वीक लिगेंड हमने देखा था. तो अमोनिया विल लीड टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. तो अमोनिया से बना हुआ जो कंपाउंड होता है उन कंपाउंड के कलर बहुत इंटेंस होते हैं, ठीक है. जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है, एकदम इंटेंस ब्लू कलर, है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था जिसमें हमने यूज किया था इस कंसेप्ट को कि फ्लोराइड वाज ए वीक लिगेंड एंड अमोनिया वाज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड. फ्लोराइड वाज ए वीक लिगेंड एंड अमोनिया वाज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है. तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्लोराइड को और साइनाइड को. तो हमने जैसे कि बताया अभी कि जितने भी हैलाइड्स होते हैं, इन जनरल जो हैलाइड्स हैं वो हैलाइड्स जो होते हैं उनके लिगेंड फील्ड बहुत वीक होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड वीक होता है, और साइनाइड का बहुत ज्यादा होता है. साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड. साइनाइड कंटेन्स स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड. दिस इज ए वीक लिगेंड, दिस इज ए वीक लिगेंड, इट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो इसी में डिफरेंस आएगा, ठीक है. Now again we'll come back to the question. Compare the structure of tetrachloridonickelate ion and tetracyanonickelate ion. Alright. अब हम दोनों theories को use करेंगे and you will be able to recall the postulates and write it down yourself very nicely. So सब कुछ मिटा देते हैं और रहने देते हैं क्या जो हमारा बचा हुआ क्वेश्चन था वो, और उसके लिए थोड़ा सा जगह. So we had to compare the structure of nickel, tetrachloronickel and tetracyanonickelate ion. All right. So electronic configuration of nickel is 28. Here its oxidation number is say X. -4 is equal to -2. So nickel plus 2 will have 26 electrons. It had a 3d8 4s2 system. So this will have 4s0 3d8 system. So if it is 3d8 4s0, this will be 4p. This will be 4s, 4p and 4ds. In this case also same condition will be there. Nickel 2 plus will have 26 electrons. So 3d8, 4s 0, 4p and 4d will also be there. Let us draw the box diagram. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 8 electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8.
4s, 4p, 1, 2, 3, 4, 5, 4d. And in this case, now chlorine is a weak ligand, so it will not be able to push these electrons inside. It will not be able to push these electrons inside. Rather, it will assume, it will take its place inside 1s, 1p, another p, and another p. 4 chlorines were required, so 4 chlorines are there. 4 chlorides are there. 4 chlorides are there. In this case, cyanide is a strong ligand. Cyanide is a strong ligand. So it will push it inside. This will form one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, and one box will become vacant. Then now cyanide will require 4 vacant orbitals, so it will use 1d, 1s, and 2p. So here hybridization is sp3, but here hybridization is dsp2. As a result, structure of nickel tetrachlorochloridonickle will be like this. It is sp3, so it will be like this: nickel, 1 chlorine, but this will be tetrahedral, and this will be square planar. So this will form structure like nickel, Cn, 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 so this will form a tetrahedral structure. This will form a square planar structure. So this was all about valence bond theory, drawbacks of valence bond theory, and use of the combined concept of crystal field theory and valence bond theory. Okay, combined concept. All right. Now after that, ligand field theory is there, in which it is said that
the molecular orbitals of the ligands and that of the central metal ion in the atom, they interact and they form the covalent bond. The study of the same here is not required in this level. All right, so up to this it was more than enough. Now we'll study a little bit more about stability of the complex compounds and how to calculate the stability, and after that we will be solving a few problems based on calculation of CFSE, calculation of magnetic moment, calculation of magnetic moment CFSE, and what else is required to be found out? Calculation of CFSE we found out, Bohr magneton we found out. Any other calculation is there in this chapter? Let me check your stability. Calculation of the stability constant. All right, a stability parameter. So 4 types of numericals will be there from this chapter. 4 types of numericals will be there. So next I will be solving problems based on calculation of magnetic moment, calculation of crystal field stabilization energy, calculation of stability parameter. Okay. And stability constant. Stability constant. So 3 problems we will be solving in our next discussion. All right. Thank you.